Hello students, I Dr. Rakesh Barola welcome all of you in the lecture of Political Science. Today's topic is Presidential Government, Adhyakshatmak Sarkar. First of all, we look the definitions. What is presidential government? The presidential executive is also called non-parliamentary executive, fixed executive, non-responsible executive. It is called president executive because in the system, president is the supreme head of the state and government. In other simple words, we can understand the presidential system. Listen carefully. A presidential system or single executive system is a form of government in which a head of government, president, leads an executive branch that is separate from the legislative branch in systems that use separation of powers. हेड कौन होता है उसका? फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच अ हेड ऑफ गवर्नमेंट प्रेसिडेंट. ओके, दिस हेड ऑफ गवर्नमेंट इज इन मोस्ट केसेस आल्सो द हेड ऑफ स्टेट. यानी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है वही मोस्टली केसेस में हेड ऑफ स्टेट भी होता है. द यूनाइटेड स्टेट is the originator and primary example of the presidential system. यानी यूएस जो है वो इसका एक एग्जाम्पल है. A model that is followed in only a few other democracies. ये मॉडल कुछ और डेमोक्रेसीज में यूज किया जाता है सच एज अर्जेंटीना, ब्राज़ील, मैक्सिको एंड फिलीपींस. In the US president system, the president is both the chief executive of the government and the head of state. यानी यूएस में प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर प्रेसिडेंट क्या है? द प्रेसिडेंट इज बोथ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द गवर्नमेंट एंड द हेड ऑफ स्टेट. ये बात करी हमने यूके के अंदर और हमने इससे समझा कि प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट क्या है. व्हाट इज प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट? नाउ we'll discuss about the characteristics of presidential government. यानी अध्यक्षात्मक सरकार की विशेषताओं की हम बात करेंगे. फर्स्ट वी टेक रियल अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार का वास्तविक अधिकार. द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली असाइंस द प्रेसिडेंट द पावर to sign or veto legislation, command the armed forces, ask for the written opinion of their cabinet, convince or adjourn Congress, grant reprieves and pardons and receive ambassadors. यानी जो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है वो वास्तविक अधिकार सरकार का उसके पास होता है. इसमें जैसे आपने देखा कि जो प्रेसिडेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट्स को ये पावर असाइन करता है या वीटो लेजिस्लेशन देता है किस किस काम के लिए? कि कमांड द आर्म्ड फोर्सेस, आस्क फॉर द रिटन ओपिनियन ऑफ देयर गवर्नमेंट, कन्वेन और एडजर्न कांग्रेस, ग्रेट रिप्रीव्स एंड पार्डन्स एंड रिसीव्स एम्बेसडर्स. दीज पावर्स आर explicitly assigned by the constitution to the president in presidential government. Next characteristics is separation of powers of organs of government. सरकार के अंगों की शक्तियों का पृथक्करण. Separation of powers. The presidential form of government is based on the principle of
separation of power among the three organs of the government. The executive is not responsible to legislature. The executive cannot dissolve the legislature, and the judiciary is independent from executive and legislature. यानी जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म है गवर्नमेंट की वो सेपरेशन ऑफ पावर्स के प्रिंसिपल पर बेस्ड है, ठीक है, जिसमें हमने ये बताया कि एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल नहीं है लेजिस्लेचर के लिए या एग्जीक्यूटिव कैन नॉट डिसॉल्व द लेजिस्लेचर. नंबर थर्ड इज इलेक्टेड फॉर फिक्स्ड टेन्यूअर. निश्चित कार्यकाल के लिए निर्वाचन. The fixed tenure in the office enjoyed by a president under the presidential system make for the stability of the government and the continuity of policies. A stable government also allows for both medium and long-term planning rather than the instability that characterizes a parliament system of government. यानी जो फिक्स्ड टेन्यूअर है वो एक स्टेबल गवर्नमेंट बनाता है, लंबे पीरियड के लिए प्लानिंग होती है, लंबे पीरियड के लिए जो है काम किया जाता है, जबकि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में इनस्टेबिलिटी रहती है. नंबर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर. विधायिका का सदस्य नहीं. द प्रेसिडेंट इज चूजन बाय अ सेपरेट इलेक्शन फ्रॉम दैट ऑफ द लेजिस्लेचर. अलग से इलेक्शन के माध्यम से चुना जाते हैं प्रेसिडेंट. द प्रेसिडेंट देन चूजेज हिज कैबिनेट मेंबर्स. फिर वो अपने कैबिनेट्स के जो मेंबर्स हैं उनको चूज करते हैं. हु आर नॉट मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर. वो लेजिस्लेचर के मेंबर नहीं भी हो सकते हैं. द सीनियर ऑफिशियल्स of the executive branch are elected separately. उन्हें बिल्कुल अलग से इलेक्ट किया जाता है. Which clearly shows the separation of powers between these branches. जिससे हमें ये देखने को मिलता है क्या? सेपरेशन ऑफ पावर्स. इन ब्रांचेस के बीच में पावर्स का सेपरेशन है. नेक्स्ट वन, सबऑर्डिनेट पोजीशन ऑफ अ कैबिनेट. कैबिनेट की अधीनस्थ स्थिति. द कैबिनेट रोल इज टू एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन एनी सब्जेक्ट ही और शी मे रिक्वायर रिलेटिंग टू द ड्यूटीज ऑफ ईच मेंबर्स रिस्पेक्टिव ऑफिस. यानी प्रेसिडेंट को राय देने की पावर किसी भी सब्जेक्ट पर कैबिनेट को होती है. हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका प्रेसिडेंट बाइडेन्स कैबिनेट रिफ्लेक्ट्स हिज प्लेस टू अपॉइंट लीडर्स ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज दैट रिफ्लेक्ट द कंट्री दे एम टू सर्व. प्रेसिडेंट बाइडेन्स के कैबिनेट है वो रिफ्लेक्ट करता है हिज प्लेस को, किस प्लेस को, कि टू अपॉइंट लीडर्स ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज that reflect the country they aim to serve. So these are the characteristics of presidential government. Today we study about the presidential government, what is presidential government and what are the characteristics of the presidential government. Today we will end this lecture. On another day we will meet with a new lecture of political science. Till then, I, Dr. Rakesh Badola, says goodbye to everyone. Thank you.